Hi, good morning, everyone. I hope you have enjoyed the few lecture series things which I have created, and I have just collected study materials from different sources, and I've prepared a session on Vedo ka Divya Sandesh. The idea to the idea of keeping these kinds of lectures available is just to have a right kind of material available in a easy and lucid form so that it is easy to learn, understand, and if you want to keep make notes and if you want to use it as a reference, you can do that. So yeah, I'm going to start with the next one, which is about Vedoka Divya Sandesh. The series name is Vedoka Divya Sandesh. It has certain sections. It is divided into certain sections. First is Brahmanatva. Second is Atmabal. Third would be Charitra Nirman. Fourth would be Dushpravritti Unmoolan. And fifth would be Parivar or Swasthya. Let's start. ब्राह्मणत्व केवल किसी विशेष कुल या जाति में जन्म लेना ब्राह्मणत्व की पहचान नहीं है। वास्तविक ब्राह्मण वह है जो अपने गुण, कर्म और स्वभाव की उत्कृष्टता से लोकहित लोकहित के लिए जीवन समर्पित करता है। इस खंड में ऐसे मंत्रों का संकलन है जो ईश्वर के अस्तित्व, उपासना और ब्राह्मण के दायित्व पर प्रकाश डालते हैं। सो वेद ये कहता है कि नो वन इज born by default into certain caste system. In fact, it is your गुण, कर्म और स्वभाव की उत्कृष्टता. Accordingly, you get decided to be part of which section you belong to. Also, Ved says Brahmanatva is not any section. Rather, it is a avastha of your mindset. It is the avastha of your vichar. If your thought process, अगर आपके विचार ब्रह्म में रमण कर रहे हैं, और ब्रह्म में रमण की एक विशेषता है कि वह लोकहित के बारे में अपना जीवन समर्पित करेगा rather than I, me और myself. ये वेद कहता है. Now let's move ahead. With this definition, I have collected few examples of different persons across the globe, mostly from the history, who by this definition would fall into the category of Brahmana. Let's understand them, who they are. Dr. Marie Curie from Poland, France. Why? Because उन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे बहुत अधिक काम किया. She was pioneered. In fact, she was the only lady back in those days who was a respected scientist and who actually did a lot of work, across in radioactive, understanding radioactive elements and its theories. She discovered radium and polonium, pioneered cancer treatment through radioactivity, which we see real life use cases nowadays. First woman to win a Nobel Prize and the only person to win Nobel Prizes in two sciences, physics and chemistry. Set up mobile X-ray units to help wounded soldiers during World War I. Second person
who could be, taken as a Brahman based on the roles, responsibilities, and the demeanor they conducted throughout their life. Albert Einstein, Germany and USA. He developed the theory of relativity, transforming modern physics, advocated for civil rights, peace, and nuclear disarmament, donated prize money, and campaigned for education and refugee relief. Third would be Norman Borlaug, known as the father of the Green Revolution, developed high-yield, disease-resistant wheat strains, credited and with saving over 1 billion lives from starvation across various developing countries. Dr. Jonas Salk developed the first successful polio vaccine, chose not to patent the vaccine, foregoing billions to ensure it reached as many people as possible. When asked who owned the patent, he famously said, "The people." This is a perfect example of when someone has not thought about I, me, and myself, but has given the credit of their hard work to the society. And hence, these are the perfect examples of the avastha of Brahmanatva, the avastha of Brahmana avastha, where their intent and their thoughts are at Brahma. And that Brahma means not thinking about themselves, but for the larger extension of the society. Another examples would be Jane Goodall. What he did revolutionized understanding of primates and human evolution, advocated for animal welfare and environmental conservation globally. Our very own Dr. APJ Abdul Kalam, a renowned aerospace scientist and former president of India, played a crucial role in India's missile and satellite programs, passionately promoted education, innovation, and rural development. Dr. M.S. Swaminathan, again from India, pioneer of India's Green Revolution, helped make India self-sufficient in food production, championed farmer rights and sustainable agriculture. Dr. Tu Youyou from China discovered artemisinin, a drug that drastically reduced malaria deaths. Her work saved millions of lives worldwide, and she is the first Chinese woman to win a Nobel Prize in physiology or medicine. Dr. Stephen Hawking advanced the understanding of black holes, time, and cosmology. Despite living with ALS, contributed significantly to science and inspired millions through public outreach and resilience. Rachel Carson, marine biologist and author of Silent Spring, raised awareness of the dangers of pesticides, inspiring the modern environmental movement. Now, these examples are very basic, are very limited, but it does not mean that these are the only people who have achieved that Brahma avastha. Rather, it includes but is not limited to. So there are many examples from the field of engineering, politics, sociology, but I have kept my discussion towards science and tech. All right, let's go ahead. So the first mantra is Indram Mitram Varunam Magni Mahuratho Divya Sasuparano Garutmana Ekam Sadvipra
बहुधा वदन्ति अग्नियमं मातरिश्वान माहु। द भावार्थ ऑफ दिस मंत्र इज परमात्मा की विभिन्न शक्तियां ही अनेक देवताओं के नाम से पुकारी जाती हैं, पर वह एक ही है। इसलिए गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा की उपासना करें। एक्सप्लेनेशन। संदेश। परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है। यह विशाल संसार, अंतरिक्ष, कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन सब के कड़कड़ में ईश्वर की असीम सत्ता विद्यमान है। वही इस सब का नियंता है, नियामक है। ईशा वास्यमिदं सर्वम। हर वस्तु में, जड़ चेतन में, हमारे रोम रोम में ईश्वर का वास है। वह निराकार परमेश्वर दिखाई नहीं देता, परंतु वही हमारी प्राण शक्ति है। सोते जागते हर समय वह हमारे साथ रहता है, हमारे भीतर भी रहता है, बाहर भी और चारों ओर भी। जैसे रबर के गुब्बारे में हवा भरी होती है, गुब्बारे के अंदर भी हवा है, बाहर भी और चारों ओर भी, पर हम उसे देख नहीं पाते। जैसे दूध की प्रत्येक बूंद में घी का अंश होता ही है, पर वह छिपा होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सर्वव्यापक है। संसार के कोने कोने में, सभी जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, सभी प्राणियों के रोम रोम में उस परमेश्वर की सत्ता विद्यमान है। उसके लिए जात पात का, पूर्व पश्चिम का, उत्तर दक्षिण का कोई झगड़ा नहीं है। सभी उसके लिए एक समान है। इस सर्वव्यापक परमेश्वर की अनेकानेक शक्तियां हैं, जिन्हें संसार के विभिन्न मतावलंबी भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। सब मनुष्यों का परमपिता परमेश्वर एक ही है। वही इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम सब कुछ है। चाहे उसे राम कहो या कृष्ण, दुर्गा हो कहो या काली, शिव शंकर कहो या अल्लाह या गॉड, नाम का नहीं, ईश्वर के गुणों का महत्व है। उन गुणों को अपने जीवन में उतारने, उनके अनुसार आचरण करने और जीवन में व्यवहार करने को ही परमात्मा की उपासना करना कहते हैं। इस प्रकार उपासना करने से, बारंबार के अभ्यास से वे गुण मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाते हैं और वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए देवत्व की ओर अग्रसर होता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही परमेश्वर को विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। उसका कोई भी नाम लें, पर उसके गुणों को अपने कर्म व स्वभाव का भिन्न अंग बनाने हेतु सतत प्रयास करते रहें। आजकल अधिकांश लोग ईश्वर के गुणों का ना तो चिंतन करते हैं और ना उन्हें अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं। उसके सर्वव्यापक रूप को तो जैसे भुला ही दिया गया है। वह अनेकानेक रूपों में सर्वत्र विद्यमान है, हर समय हमारे साथ है। संसार के कोने कोने में उसकी सार्वभौम सत्ता है। इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रभु के नाम और उसके गुणों का चिंतन करते ही रहना चाहिए। वेनस्तत् पश्यन्निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडं तस्मिन्निदद्वं सं च विचयति सर्वं द्वं सवोत प्रोतश्च विभु प्रजासुः। भावार्थ। विद्वान लोग अपने ज्ञान से, चिंतन मनन से और अनुभव से यह जान लेते हैं कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में छिपा हुआ है। वही संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाला है। उसी से सारी सृष्टि प्रकट होती है। सभी प्राणी
उससे उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में उसी में लय हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन संदेश। संसार में आस्तिक व नास्तिक सभी प्रकार के लोग हैं। जो अनीश्वरवादी हैं वे भी इस बात को मानते हैं कि कोई शक्ति है जो इस सारे संसार को, लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों को एक निश्चित लय से चलाती रहती है। चाहे बुद्धि व तर्क की कसौटी पर परखें या फिर श्रद्धा व विश्वास के आधार पर माने, ईश्वर की सर्वव्यापकता में कोई संदेह तो हो ही नहीं सकता। वह प्रत्यक्ष दिखाई ना दे, पर हर स्थिति में हम उसको अनुभव कर सकते हैं। शर्त केवल यही है कि तर्क कुतर्क के दुराग्रह में फंसकर हम सत्य को झुठलाने का प्रयास ना करें। परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह सारा विश्व उसी का रूप है। पुरुष अवेद द्वम सर्वम। इस प्रकार भगवान की हर जगह उपस्थिति को स्वीकार कर लेने से मनुष्य के आत्मबल में वृद्धि होती है। हर समय एक शक्तिशाली समर्थ मित्र व सहायक के सानिध्य में रहने से प्रतिभा, क्षमता व पौरुष का जागरण होता है और सत्कर्मों में मन की प्रवृत्ति बढ़ती है। ईश्वरी सत्ता के दिव्य प्रकाश से अभिभूत होकर मनुष्य स्वतः ही पाप कर्मों से बचा रहता है। उसे यह भान रहता है कि वह परमात्मा की दृष्टि से ओझल नहीं है और उसके हर अच्छे बुरे कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा। इस प्रकार जहाँ एक और मनुष्य सत्कर्मों में प्रवृत्त होता है, वहीं दुष्प्रवृत्तियों से बचा भी रहता है और देवता बनने के मार्ग पर बढ़ता जाता है। संसार में हर वस्तु किसी न किसी आधार पर टिकी है। यदि आधार छोटा और कमजोर होगा तो उस वस्तु की स्थिति डावाडोल और अस्थिर होगी, और यदि आधार सबल और ठोस होगा तो वह वस्तु टिकाऊ और स्थिर होगी। सर्वव्यापी परमेश्वर को अपना आधार बना लेने वाला सदैव निश्चिंत रहता है। माया, मोह, लोभ, अहंकार आदि के झंझावात भी उसे डिगा नहीं पाते। उसे सदैव अपने हृदय में ईश्वर के दर्शन होते ही रहते हैं। उस परमपिता परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश हमारी आत्मा है। उसी से इस शरीर में चेतना का प्रवाह होता है। शक्ति का अजस्त्र भंडार हमारे अपने ही भीतर विद्यमान है, पर हम अज्ञानवश इस तथ्य को जान ही नहीं पाते और सदैव अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं। जब हम अपने अर्जित ज्ञान से, अनुभव से और विवेक बुद्धि से चिंतन करते हैं तो हमें अपने भीतर परमात्मा की असीम शक्ति की अनुभूति होती है। यह शक्ति हमारे आत्मबल को बढ़ाती है और जीवन पथ की बाधाओं पर विजय पाने का मार्ग सरल हो जाता है। हर समय दयालु पिता का वरद हस्त हमारे ऊपर रहता है और हमारी रक्षा करता रहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आश्रय ही सांसारिक तापों से मुक्ति प्रदान कर सकता है। अग्निस्तिग्मेन शोचशा यद्वं सद्विषम नियत्रणम अग्निर्नो व ध्वंसते रयिम। भावार्थ, हे अग्निदेव, आप सदैव सबके साथ न्याय करते हैं। दुष्ट दुराचारी पुरुषों को तथा विघ्नकारक तत्वों को आप अपनी प्रज्वलित तीक्ष्ण ज्वालाओं से नष्ट कर दें, और जो धर्मात्मा हैं, आपकी स्तुति तथा उपासना करते हैं, उनको बल व ऐश्वर्य प्रदान करें। एक्सप्लेनेशन संदेश। इस मंत्र में ईश्वर के न्यायकारी स्वरूप की स्तुति की गई है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यह संभव है कि हम किसी भी प्रकार से चापलूसी करके उसे अपने वश में कर ले और मनचाहा कार्य करा ले। यह असंभव है कि हम किसी भी प्रकार से चापलूसी करके उसे अपने वश में कर ले और मनचाहा कार्य करा ले।
चारों ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अनेक व्यक्ति तरह तरह से भगवान की पूजा उपासना करते हैं, अनुष्ठान व कर्मकांड करते हैं, फिर भी सदैव अभावग्रस्त, दुखी और विपन्न स्थिति में ही रहते हैं। इसका कारण यही है कि उनकी भावना सदैव स्वार्थ व दुराचार की रहती है। परमात्मा की न्याय की तुला में तो यह कृत्य दिखावा और छलावा मात्र ही है और दंड के योग्य है। दूसरी ओर जो व्यक्ति पूजा उपासना के कर्मकांड तो नहीं करते, पर हर समय धर्मानुसार आचरण में लगे रहते हैं। धर्मानुसार का यहाँ मतलब ये है करने योग्य कार्य। करने योग्य कार्य, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू शुड बी स्टडीइंग, इफ यू आर अ ऑफिस गोइंग गाय यू शुड बी वर्किंग हार्ड ऑन योर जॉब एंड टास्क एंड यू शुड बी अपस्किलिंग योरसेल्फ। दिस इज नोन एज धर्मानुसार। धर्म मतलब करने योग्य चीज। दूसरी ओर जो व्यक्ति पूजा उपासना के कर्मकांड तो नहीं करते, पर हर समय धर्मानुसार आचरण में लगे रहते हैं, उन पर भगवान के अनुदान वरदान की सतत वर्षा होती रहती है। सभी मनुष्य उसी परमपिता परमात्मा की संतान है और एक समान है। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस तथ्य को हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, आज मिले या कल, इसी जन्म में या अगले जन्म में, पर कर्मों के फल से कोई भी बच नहीं सकता। यही ईश्वर का न्यायकारी स्वरूप है। इस तथ्य पर विश्वास जितना ही दृढ़ होता जाता है, उतना ही हमारे भीतर सात्विकता की भावना विकसित होती है। मन का अधोगामी खिंचाव नष्ट होकर उसका ऊर्ध्वगामी होना ही सात्विकता है। फ्रॉम अप डाउनवर्ड फॉलिंग टूवर्ड्स अपवर्ड फॉलिंग। ऊर्ध्वगामी, अपवर्ड, अपवर्ड एक्सटेंशन। मन का अधोगामी खिंचाव नष्ट होकर उसका ऊर्ध्वगामी, ऊपर उठना, ऊपर की ओर जाना होना ही सात्विकता है। श्रेष्ठ बनने की आकांक्षा अंतःकरण में जगाकर उसके लिए प्रयत्नशील होना, यही सात्विकता है। सत, रज और तम, इन तीन गुणों से संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। मनुष्य का मन भी इन्हीं तीनों गुणों से बना है। तामसी गुणों का त्याग करके राजसी गुणों में और फिर राजसी गुणों को भी त्याग कर सात्विक गुणों का विकास करना ही वैदिक धर्म का चरम लक्ष्य है। यह ज्ञान ही हमें दुष्कर्मों व दुर्गुणों से बचाता है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होकर उसे सुंदर, श्रेष्ठ और सात्विक बनाता है। छोटा बड़ा कोई भी कर्म करते समय दृष्टि सदैव की ओर, दृष्टि सत्व की ओर रहती है। विवेक बुद्धि सदा जागृत रहती है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने देती जिससे ईश्वर का कोपभाजन बनना पड़े। हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण अपना यह सत्संकल्प दोहराते रहना चाहिए कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। इसी में हमारा कल्याण है। इसी से हम पुत्रैषणा, वित्तैषणा तथा लोकैषणा की भावना से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा को पाप की दलदल में डूबने से बचा सकेंगे। हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण अपना यह सत्संकल्प दोहराते रहना चाहिए कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। इसी में हमारा कल्याण है। इसी से हम पुत्रैषणा, वित्तैषणा तथा लोकैषणा की भावना से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा को पाप की दलदल में डूबने से बचा सकेंगे। तभी हमें आत्मबल, बुद्धिबल, धन बल तथा ऐश्वर्य प्राप्त होगा। परम प्रभु की उपासना
इसी को कहते हैं।